वेलकम एवरीवन। मेरे साथ हैं जय ठक्कर जी। सर, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। आस्क मी एनीथिंग में बहुत सारे सवाल आई कैन सी ऑलरेडी आने शुरू भी हो गए हैं सर। मैं आई डायरेक्टली स्टार्ट फायरिंग देम। पहला क्वेश्चन है सर, लॉन्ग टर्म के लिए अभी किस स्टॉक को लेना चाहिए? और मेरे पास नेस्ले है 2,500 की रेट पे, कहाँ मिले तो और लूं? ये अशोक वर्मा जी ने पहला सवाल दागा है सर। Okay, first of all, Vishu, thanks for arranging this on a very special day. I mean, today is a Gudi Padwa and many other festivals, but then I would first of all wish to all the joinees, all the ICICI direct customers, all the others who have joined this live session of ours. Also on behalf of ICICI Securities, the best wishes for today on account of Gudi Padwa and all the other festivals which India is celebrating today. It's a very auspicious day, and I wish and pray for a good life, good health of everyone. Yeah, Vishu. And we now start with the first very question of Nestle. So Nestle, see, it's overall has been a trending stock issue, and as far as I see out here, then I think that on the lower side now, immediately 2350 levels are a very good support levels in the near term. Until those levels are held, this consolidation once gets over, it will again resume its uptrend because overall medium term trend is positive out here. So 2350, watch out for these levels as a support levels till these levels are held. The medium term trend would be positive. The short term trend, however, Vishu is still sideways. राइट, राइट सर। ऑसम आंसर। सेकंड, अशोक वर्मा जी ने पूछा था लॉन्ग टर्म के लिए कोई उनको स्टॉक चाहिए? Definitely, definitely. See, Vishu, I mean, since I had the derivatives and quant research department, so I would be focusing on the FNO stocks only. राइट, Otherwise we have a technical department who looks after the equity cash segments or I would say non-FNO stocks, right? राइट, Now, as far as uh, the FNO stock segment is concerned, we have a huge list there as well. Vishu, nothing to worry. So, for this year, I would say one of the stock which I like from a positional point of view is Escorts, right? I mean, it's trading around the levels of 3053 right now. I'm talking about the spot levels. This stock seems to have taken a very good support at the lower end of the rising channel. If you see in the medium to long term channel of it has taken a support there. The medium to long term indicators have provided a good bullish crossover recently. I mean, we have seen this stock, in fact, providing a very nice breakout from its falling channel. So, in the April series has so far been a very good series for escorts. The overall auto sector itself, if you see, Vishu is trading at its lifetime high. So, overall sector is positive. So, we have a sector momentum, we have a stock momentum back on the upside. And I think with this kind of a momentum now, escorts has a very good support around the levels of 2800 to 2850 range. Until this range is held, we can see it making a new life high again. The previous highs of escorts was around 3440 issue. It's trading around 33,053. So still away almost approximately 400 points from the current levels as well. So that would sum it up to, that would get it to 13% or so returns minimum on the upside. But then I think eventually it will go and touch the levels of say 37,100 to 4,000. So there can be good 20% plus upside, which can be seen on escorts for the remaining calendar year as well, which is 9 months. So annualized, it will be more than 20% or 24% approximately. So yeah, it's a good candidate on the long side as far as one stock from the FNO segment is concerned. So राइट, yes, one can focus here, and there are plenty of other stocks as well. As and when we take questions, I will further reply. राइट, राइट। ऑल्सो ऑडियंस से मैं ये बोलना चाहूंगा कि प्लीज डोंट आस्क जस्ट अबाउट स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज। वो तो हम लोग लाइव एक्सपायरी पे भी करते हैं। हमारे साथ जय सर आज हैं, तो थोड़े से और नॉलेजेबल क्वेश्चंस ही पूछिए इंडिकेटर्स के ऊपर। कैसे चार्ट स्टडी करे जा सकते हैं, कैसे ट्रेडिंग कैसे करी जा सकती है, एफएनओ डेरिवेटिव्स पे क्वेश्चंस पूछिए, अच्छे क्वेश्चंस भी पूछिए। ये तो अभी आज पूछेंगे एंड इसका जवाब कल परसों तक फिर कुछ और चेंज हो जाएगा व्यू। तो यूज दिस अपॉर्चुनिटी फॉर क्वेश्चंस जो कि आपको सही में फायदा करें। राइट। तो सर, नेक्स्ट उत्कर्ष शर्मा जी ने नेचुरल गैस पे भी पूछा है।
Well, Bilkul, see, I would say that overall, the short-term cycle for all of these commodities have been up. But then, the natural gas stock has crude oil low. But then I would say that, as and when, the uh, downtrend again resumes in either crude oil or nat gas, because the medium-term trend seems to be for, weak only we show out here in nat gas, and I think that. Um, Till the medium term trend is not reversing from down to up, I would really like to ignore this. But then one news which has come as far as that case is concerned is that SEBI today has approved the MCX request to launch the crude oil and nat gas mini contract options or optional contracts. Okay, so that would be something which would definitely get a lot of liquidity, and one will get to trade crude and natural gas mini contracts as well in options. So that's a good positive, and that's a good positive for the MCX as well. I mean, I'm sure with this, the volumes will definitely shoot up even more. राइट सर. नेक्स्ट चेतन सर ने निफ्टी पे भी पूछा. उन्होंने बोला था 22,700 पी लिया है उन्होंने, नीचे जाएगा या सेल कर दूं. तो Okay. We can reply this. See, I would say that till your stop loss for this 22,700 should be I think of today's high. I mean 22,768 on spot 770. I mean if those levels are taken off, I mean you should be out of your put options because overall if you see Bank Nifty has been trading quite positive today. yeah. In fact, we have recommended Bank Nifty a couple of times today from our research desk. We recommended Fin Nifty as well. We recommended Nifty put to short, not to buy, and we have made money out there everywhere. Okay, so see overall trend in the short term is positive. Bank Nifty has taken off, and I also recommended as a disclaimer, I would say on the Z Business as well to buy 49,000 call option on the next weekly expiry. I mean at around 250 levels, it went to 380 levels, right? What is the reason? We should know after December, Bank Nifty has managed to sustain above its all-time high levels of 48,636, 637 levels, and it is still just up by 300 points from there. It's not even 1%. Nifty, rather, I would say, has managed to make lifetime highs a couple of times. Bank Nifty did not. So there was a negative divergence, and post that Bank Nifty has just taken off his eyes, and we've seen that private sector banks are doing good. So which has got more of weightage issue, right? So I think that it's heading towards 49,250, 49,500 in the short term, Bank Nifty. So we still have further 300 to maybe 550 points still to go on Bank Nifty. Until that happens, I mean, still 1% at least. Yeah, maybe you get it tomorrow. Tomorrow is the Nifty and Bank Nifty expiry both together. So probably it happens tomorrow, maybe next week. But then the chances of Nifty also taking off 22,800 is high. It's just that once it take off, it will take further momentum. So you place a stop loss of today's high on the spot levels and hold on. If those levels aren't taken off, you can continue with this position as exit. राइट राइट. थैंक यू फॉर दैट सर. नेक्स्ट सर उमा माहेश्वरी जी ने पूछा है, कैन यू से अबाउट गुजरात गैस. Gujarat Gas is one of the stock which I have been recommending, and which I like. I mean, I had recommended this yesterday on Z Business as well, Vishu. Um, I recommended at around the levels of 556, 57. Today it went up to 570. In fact, I had a target of 574. So it made a high of 570.90. Almost the first target got achieved. See, I think that if you are holding this position, you can either book profits or maybe trade stop loss above your cost. But the medium term chart structure of Gujarat Gas is positive. It seems to have completed a three-wave corrective fall. Even if I look at the derivatives data issue, I mean, since March last week, we have continuously seen this stock slowly and gradually forming good long build-up. So we earlier saw, there was few shorts that was built up during the start of March series, but then we saw those shorts getting covered. We saw some long getting formed. We have seen some long unwinding also. I mean, today we are seeing some long unwinding out there. Otherwise, but then net we have seen a good upside
long build up in this stock. If you see last 3 months data as well. Okay, so it's more of longs rather than shorts. At some points, we have seen some long unwinding, but net it has been on the long side. So Gujarat Gas, I think, for the positional perspective, I mean, if it is managing to surpass the levels of 575, we should it would thereafter go above 600 levels as well. So if you're holding this position, trail it above your cost. If you can hold it positionally above 575, it will gain further momentum. Thereafter it can go to 600 to 625 levels as well. राइट, परफेक्ट सर। सर नेक्स्ट हमारे पास प्रफुल्ल देशमुख जी ने टाटा पावर पर व्यू पूछा। See, Tata Power is very, issue, I would say, bullish, I would say, in the short term. We have seen this stock, slowly, gradually forming higher tops and higher bottom. Now, what has happened is power stocks are doing good, oil and gas is doing good, metals are doing good. So commodities, power, oil and gas, all of these, I mean, are really doing good. I mean, which are related directly, indirectly to the growth of the economy, or maybe wherever we can see the capex. These are doing good. I mean, also with the rise of auto sector as well, wherein we've seen a good, I would say, demand in the EV sector as well. So these are all structurally positive stocks. But looking at the short term, looking at the derivatives data of the Tata Power, then I think yes, in the last few days, we have seen some good short covering happening in Tata Power. I mean, since the start of April, we have seen a really good short covering out here, because since March we have seen significant short build up in Tata Powers, right from the levels of 433 until 370, and all of those shorts seems to have got covered now. So with that, I think that yes, now if at all it takes off its previous highs of 433, 434, you would see this stock forming some longs as well. So there is no such weak momentum out here. It's just one thing I would say, that today's low is very crucial, 416 on the spot. I mean, till those levels are held, Tata Power may inch towards the levels of 450 as well. राइट राइट, ऑसम, थैंक यू फॉर दैट सर। संदीप जैन जी ने गुड स्टॉक्स टू बाय नाउ फॉर इन्वेस्टिंग पूछा था सर, वो हमने ऑलरेडी कवर किया अशोक वर्मा जी के क्वेश्चन के साथ। यू कैन गो बैक टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड यू विल गेट दैट। नेक्स्ट हमारे पास सर आशीष पटेल जी ने पूछा था बैंक निफ्टी एंड निफ्टी टारगेट फॉर दिस एक्सपायरी एंड पीसीआर इज ओवरबॉट जोन, व्हाट शुड वी डू। तो एक निफ्टी Bank बैंक निफ्टी Nifty आपने सर। Bank Nifty Vishu Yep. relatively is positive to Nifty. What has happened is Nifty is Vishu that it has. I mean, I just replied to one of the gentlemen who asked us Nifty view, and I said that if you are holding put, probably till today's high is not taken off, you can continue to hold. I mean, why? Because today on Nifty Vishu, we see that at around the levels of 22,768, 22,770 odd levels, there is a resistance on spot, and it really is it's important to take off those levels to further travel to around say 22,825, 850 levels. But expiry point of view, as of now, that is for tomorrow, I don't see Nifty going beyond 22,900. I mean, it's 22,720, so I don't see more than 1% upside. I mean, if it happens, it will be backed by Bank Nifty. On the downside, I even don't see Nifty, going below 22,600. So my view, my range for Nifty is 22,600 to 22,900. That's 1.5% or maybe less than that range. As far as Bank Nifty is concerned, Vishu, I would say that yes, 48,500. For me, that's a very crucial support for expiry. And on the upside, I mean, the possibility of it inching towards 49, 250, 300, which I said is the first target, and then after 49, 500 is quite high. So Bank Nifty's range would be 48, 500 to 49, 200 first, and about 200 it would be 49, 500. So that's 700 to 1,000 points range on Bank Nifty. राइट, ऑसम ऑसम सर। नेक्स्ट सर हमारे पास उमेश जी का क्वेश्चन है, व्यू ऑन एचडीएफसी बैंक एंड आईएक्स। तो आईएक्स तो See, आई थिंक है नहीं, yeah, Vishu. आईएक्स तो आई थिंक है नहीं डेरिवेटिव्स में आई थिंक। नहीं, है ना, IEX derivatives में है, बिल्कुल है, yes.
सी IEX, पहले तो मैं ये बता दूं सब लोग को कि हम देख लेना चाहिए कि क्या ये बैन में है कि नहीं। सो ये बैन में नहीं है, काफी बार IEX बैन में चले जाता है। यहाँ पे IEX की आप ओवरऑल मार्केट वाइड पोजीशन भी देखेंगे, विश्व के अराउंड 64%, तो स्टिल अभी भी बैन में जाने के चांसेस कम है, अभी भी काफी दूर है। टेक्निकली अगर मैं बात करूं पहले तो IEX की, सो IEX में रिकवरी वी हैव सीन गुड, अच्छी रिकवरी हमें देखने मिली है रिसेंटली। आई मीन विश्व मैंने देखा है लास्ट 6 महीने से, मे बी मोर देन दैट, ओके 6 से 9 महीने से, कि ये 125-30 की जो जोन है IEX की, वो एक अच्छी सपोर्ट जोन है, वो तोड़ नहीं रहा है, वहां पे अच्छा सपोर्ट ले रहा है। बट एक बहुत ही शार्प राइज आई थी, 170-172 के लेवल्स तक, 170-172 तक। उसके बाद ये लेवल्स, ये स्टॉक ने वो लेवल्स निकाले नहीं, इनफैक्ट उसके बाद लोअर टॉप्स बनना चाहते हैं। तो वो क्या रहा है कि IEX की जो रेंज है वो काफी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, अब नीचे में 130 का सपोर्ट है, ऊपर में 160 का रेजिस्टेंस है। सो टेक्निकली स्पीकिंग फर्स्ट 130 से 160 की एक रेंज बनी हुई है, ठीक है, बट इसका मोमेंटम काफी हो, तो यहाँ पे इसीलिए मैं सेल करने की सलाह नहीं दूंगा। सेल ये तभी होगा अगर 130 के नीचे जाए, तो तब मोमेंटम फिर से नीचे की तरफ डेवलप हो सकता है, तब तक नहीं। और IEX का अगर इशू हम ये डेरिवेटिव्स डेटा थोड़ा देख रहे हैं कि कैसा है, पिछले मैं कहूंगा कि लगभग 2-3 महीनों का ही देख लें, क्योंकि 6 महीने से मैंने कहा कि ये स्टॉक एक रेंज में अटका हुआ है। तो पिछले 3 महीने का भी हम डेटा देख लें, अभी मैं देख के बताता हूँ। यस, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो नेट नेट इशू, रीसेंट जो हमने बाउंस देखने मिला है, अगेन बैक बैक शॉर्ट कवरिंग। सो यहाँ पे आप अगर देखेंगे, मे बी फरवरी से या प्रोबली ये कैलेंडर ईयर से इशू, तो ज्यादातर IEX में अगर मैं देख रहा हूँ, वी हैव मोर ऑफ सीन short covering or maybe short build-up rather than long build-up for a longer time. कहीं पे फेब में थोड़ा बहुत हमें लॉन्ग देखने मिला था, और वो जो फेब में लॉन्ग देखने मिला था विशु, उसके कारण से ये स्टॉक में थोड़ा बहुत बाउंस आया था, बट अदरवाइज इट हैज बीन मोर ऑफ रेंज बाउंस, शॉर्ट्स या तो शॉर्ट कवरिंग ही देखने मिलती, तो अभी भी वो हिसाब का ओवाई बिल्डअप नहीं हुआ लॉन्ग साइड पर। सो आई वुड से इट्स अवॉइडेबल इफ यू आर नॉट हैविंग अ पोजीशन एज ऑफ। 155 160 के लेवल्स निकले ना विशु, तब कोई ढूंढ सोच सकता है इसको लेने के बारे में, बट बेचना अभी नहीं है। अब दूसरा स्टॉक जो आपने पूछा था विशु, HDFC बैंक है। इसमें तो जबरदस्त एक मोमेंटम आपको देखने मिला ही है। I mean, this has in fact led a rally recently in बैंक निफ्टी, जिसके कारण दिस इज वन ऑफ द स्टॉक विच मेजर रीजन बैंक निफ्टी में फिर से एक लाइफ टाइम हाई बदलेगा। काफी शॉर्ट्स यहाँ पे बने थे और शॉर्ट कवरिंग हमें फुल देखने मिला। अभी भी HDFC में ऐसा कुछ खास लॉन्ग बिल्डअप नहीं देखने मिला है। जो भी हमें बाउंस देखने मिला है इज बैक्ड ऑन शॉर्ट कवरिंग। सो हम्म। शॉर्ट टर्म में अगर मैं इसके डेटा देखूं, यस, ये ये एटलीस्ट एज ऑफ नाउ ये सीरीज के लिए 1600 के आसपास के जो लेवल्स हैं, वो एक रेजिस्टेंस बनकर आ रहे हैं। अच्छी खासी हमें कॉल राइटिंग वहां पे देखने मिली है, वो लेवल्स निकालना जरूरी है, और वो खास करके इसीलिए भी इशू, बिकॉज अगर आपको याद रहेगा तो 17 जैन को जब HDFC बैंक का रिजल्ट आया था, उसमें गैप डाउन देखने मिला था बड़ा वाला, जिसके कारण मैं हमेशा कहता था बैंक निफ्टी में गैप डाउन देखने मिला था। 47,200 लेवल्स नहीं निकाल पा रहा था बैंक निफ्टी ने, वो लेवल्स निकाल के आज वहां से लगभग 1,500 पॉइंट ऊपर है। अब इसको निकालना है वो लेवल, तो वो 1600 का लेवल है। तो ये सीरीज में 1600 के लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं HDFC बैंक में, वो निकलते हैं तो ठीक है, अदरवाइज 1500 से 1600 के रेंज में ट्रेड कर सकता है। राइट राइट, ऑसम। नेक्स्ट सर हमारे पास है घूमने वाला जी का IRB इंफ्रा। IRB इंफ्रा विशु, ये डेरिवेटिव्स में नहीं है, तो वी वुड नॉट टेक दिस, हम डेरिवेटिव्स के स्टॉक को ज्यादा focus करेंगे। जी। सपन अग्रवाल जी का यस बैंक। वो भी आई है, वो नहीं है डेरिवेटिव्स में। देन संदीप जैन जी का फिर से वही रिपीट हुआ, तो वो ऑलरेडी सॉ। हेलो, श्वेता जी का PVR है, इंद्रनील जी का GNFC है।
दोनों ही है, डेरिवेटिव्स में हम दोनों पे ही राय ले सकते हैं। पीवीआर मुझे पॉजिटिव लग रहा है, शॉर्ट टर्म में तो पॉजिटिव लग रहा है, डेफिनेटली लग रहा है। उसका कारण मैं आपको क्लियर बता दूं कि दिसंबर से पीवीआर में जो फॉल देखने में लगा 1830 लेवल से लेकर 1240-45 तक, सो लगभग आपको 600 रुपए का एक कट देखने मिला पीवीआर में, अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप हुआ था वहां पे। अब उसका रिट्रेसमेंट मुझे लग रहा है कि हो सकता है 1470 तक, तो अभी भी यहाँ से लगभग 85 पॉइंट्स की जगह है, विच वुड गेट यू टू अराउंड से 5%, 5 टू 7% का मूव अभी भी अभी बाकी है। और 5% का आपको 65 रुपए का मूव दिखाएगा, मैं तो बताऊँ 85 का है, और 20 रुपए जोड़ दीजिए वहां से, तो लगभग 1.5 गुना और, तो 6.5% का अभी भी मूव बाकी है करंट प्राइस से। इसका सपोर्ट मुझे लगता है 1325 के आसपास है विशु। सो 60 रुपए नीचे, 85 रुपए ऊपर, 1:1.5 के करीब करीब का रिस्क रिवॉर्ड आपका बनेगा, राइट? 60-90 होता तो। अब इसको आप ट्रेड करना तो ये भी कर सकते हैं कि आप कवर कॉल कर दीजिए या तो प्रोटेक्टिव पुट कर दीजिए, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड 1:2 नहीं है। या तो आप क्या कर सकते हैं विशु, कि आप एक कॉल ऑप्शन इसका खरीद सकते हैं, एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी इसकी बिठा सकते हैं आप ये अप्रैल सीरीज में। कि ऑप्शन स्ट्रेटेजी में आप क्या कर सकते हैं कि 1380 का एक कॉल ले सकते हैं इसका, ये आपको भी मिलेगा 42-43 के रेंज में, ठीक है। एंड शाम में आप इसका एक कॉल ऑप्शन बेच दीजिए, तो मैं कहूंगा कि आप बेच सकते हैं लगभग से 14, देख लेता हूँ मैं लिक्विडिटी कहाँ पे है। सो ठीक है, 1460 का एक कॉल बिक सकता है यहाँ पे, ये आपका बिकेगा लगभग 14 रुपए के आसपास, 14-15 रुपए का। तो मान लीजिए 43 में आया, 14 में गया विशु, सो आपका नेट नेट लागत होगी 29 रुपए की, ठीक है। दोनों स्ट्राइक में डिफरेंस है 80 रुपए का, तो आपको प्रॉफिट हो सकता है 51 रुपए का। अब 50 और 30 मान लीजिए, तो 50 और 30 भी अगर आप मान लेंगे ना विशु, तो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है 1:1.6 का बनेगा। तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बन सकता है, विच इज बेटर देन लॉन्ग ओनली, जिसमें 85 डिवाइड बाय 60 है, तो वहां पे 1:1.4 का है, यहाँ पे 1:1.66 का है। सो यू कैन डू दिस फुल कॉल स्प्रेड एज वेल, अगर आपको नेकेड लॉन्ग नहीं आना तो। बट ये मेरी राय क्लियर रहेगी पीवीआर आइनॉक्स। इसका मैं आपको थोड़ा विशु, हम जो ज्वाइन करे उनको ये भी बता दूं कि पीवीआर में जो शॉर्ट्स बने थे एंटायर मार्च में जबरदस्त, वो शॉर्ट कवरिंग के बाद अब लॉन्ग बिल्डअप होते हुए देखे, सो दैट इज अ पॉजिटिव पिछले 2 दिनों से। जहां तक जीएनएफसी का सवाल है, स्ट्रॉन्ग क्लियर क्लियर लॉन्ग बिल्डअप है यहाँ पे, मुझे तो स्ट्रॉन्ग लग रहा है ये स्टॉक। आई मीन लगभग विशु में कहूंगा आपको कि अप्रैल महीने तो अच्छी एक हमें इसमें अपसाइड देखने मिली है। इनफैक्ट जीएनएफसी हैज बीन वन स्टॉक विशु, मुझे याद है मार्च मिड के बाद में लॉन्ग रिकमेंड कर रहा हूँ इसको, और वो जो लॉन्ग रिकमेंड कर रहा था वो हिसाब से बाउंस आया भी है। मैंने जी पर भी रिकमेंड किया था, मैं शायद हमारे जो यूट्यूब लाइव सेशन में वहां पर बुल कॉल स्प्रेड भी शायद रिकमेंड किया हो, ठीक है। हर जगह पे टारगेट्स आए हैं हमारे। अब वो ये स्टॉक में बाय ऑन डिप्स की मेरी सलाह होगी, अगर आपको 680 के आसपास मिले तो खरीदे, अभी 704 के आसपास है, जो सोचा था वो हो गया। अब बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी यहाँ पे 680 के आसपास आया तो खरीदे, आपकी अगर पोजीशन हो तो आप इसे ट्रेल कर दीजिए 690, 700 के आसपास, 95 के आसपास, और वो पोजीशन नहीं है तो मत बनाए, बाय ऑन डिप्स करें या विश। Right. So next up we have GMR Infra, GMR Airport, Infra Airport. I think yeah, same. हाँ वही जीएमआर इंफ्रा, 85-86 का रेट चल रहा है विशु यहाँ पे। सी ये स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिया है, आई मीन दिस हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट रैली फॉर दिस स्टॉक सिंस लॉन्ग। आई मीन ये स्टॉक धीरे 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 ऊपर ही जा रहा है। आई मीन मैंने इस स्टॉक को देखा है, काफी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ। Right. मोमेंटम जो रियली ये स्टॉक में बना है ना विशु, वो Right. जो रिसेंटली बना है, आई मीन 23 एंड से मतलब मिड से एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम में आ चुका है स्टॉक। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में नियरली अराउंड 90 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, वो टूटे तो एक बड़ा मूव आपको फर्दर देखने मिलेगा। सी इसका मंथली डेली मोमेंटम पॉजिटिव है, वीकली मोमेंटम पॉजिटिव नहीं है, तो इसीलिए मैं इसमें अभी अवॉइड करने की सलाह दूंगा। जहां तक इसके मैं दूसरे डेरिवेटिव डेटा देखूं,
तो यहाँ पे ओवरऑल लॉन्ग तो बने हैं। बात है शॉर्ट कवरिंग के कारण इसमें अप मूव देखने मिला, बट कुछ खास लॉन्ग बिल्डअप नहीं देखने मिला। जो बाउंस आया वो शॉर्ट कवरिंग के कारण आया। सो मेरी ये स्टॉक पे बेचने की सलाह तो नहीं है विशु, पर लेने के लिए मुझे इतना अट्रैक्टिव भी ऐसा लगा नहीं। राइट, परफेक्ट। नेक्स्ट सर, अंकित माधुकरिया का था कि कोई अभी इमीडिएट 15 मिनट वाला ट्रेड बताइए। तो 15 मिनट वाला ट्रेड तो देखिए मैं कहूंगा डिफिकल्ट रहेगा नो करना। मगर मैं एक ट्रेड यहाँ पे अगर मेरे को रेकमेंड ही करना है विशु, तो कल की एक्सपायरी का नहीं, हम फर्दर नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का मैं एक ट्रेड आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। ठीक है, और वो बैंक निफ्टी पर ही रहेगा। हम बैंक निफ्टी पर क्यों, हम वो देखते हैं। आज ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो इन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेड मांगा है ना, उससे लग रहा है वापस ये एक्सपायरी वाला हुआ है। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में इशू आपको फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगी। हम्म। तो ये 15 मिनट का हो कि नेक्स्ट वीकली तक का हो, आप देखिए ये ट्रंकेटेड वीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का एक कॉल ऑप्शन सजेस्ट करूंगा। जैसे भी इशू मैंने कहा आपको कि 49,200 तक की तो जगह मुझे दिख रही है। सो ये ऑप्शन ट्रेड कर रहा है 252-53 पे। 49,200 का कॉल ऑप्शन अगर आप देखें, 250-253 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये 16 अप्रैल की एक्सपायरी का, इसे आप खरीद सकते हैं। ये प्लेन वेनिला भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा पोजिशनल पर्सपेक्टिव में आपको स्टॉप लॉस अगर बताऊं तो इशू रहेगा 134 का। ओके। ठीक है, 134 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा। ये मैं आपको पोजिशनल दे रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट वीक के लिए तो मैं 40-50 रुपए का स्टॉप लॉस थोड़ी दूंगा, ये तो कल का ही दे देता। नेक्स्ट वीक या। के लिए का है, इसीलिए थोड़ा मैंने आउट ऑफ द मनी भी चूज किया है। स्टॉप लॉस भी थोड़ा वाइडर दिया है। आपको इसमें 400 रुपए तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। 400, 450 के। अगर 49,500 आ जाता है तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ही 300 रुपए की हो जाएगी। और ये अगर राइट। पहले ही आ जाता है उसके पहले, शुक्रवार तक सोमवार तक, तो ये आपको 400 रुपए तक के भाव भी दिखा सकता है। तो ये आप खरीदे 252-53 को। अगर लिया हो तो बताइएगा भी जरूर चैट में। यू नो सी इसका मेन कारण ये है कि अगर आप देखिए आज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मूव अच्छा है। मेरा एज अ डिस्क्लेमर मैं कहूंगा, हमारा कोई आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर रिकमेंडेशन नहीं है। मैं केवल इतना बता रहा हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक आज 2.5% ऊपर है। दैट इज इट। सो वो पॉजिटिव है। फेडरल बैंक पॉजिटिव है। एयू बैंक अच्छा पॉजिटिव चल रहा है। एक्सिस बैंक में आज अच्छी ब्लॉक डील हुई इशू। और ब्लॉक डील के बाद अगर आप देखें तो रुझान फिर से पॉजिटिव हो चुका है आज। 3/4% पॉजिटिव है। नीचे के लेवल्स पर एक अच्छा सपोर्ट मिला है। एक्सिस बैंक ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सबसे बेस बना है वो 1100 रुपए तक जा सकता है। 1100, 1110 तक। राइट। फिर आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कल अच्छा एक मूव देखने मिला था। केवल एक एचडीएफसी बैंक थोड़ा साइडवेज हो चुका है। उसने कमान संभाली थी अभी तक, वो साइडवेज हो चुका है। अदरवाइज मुझे कुछ खास बैंक निफ्टी में कुछ किधर नेगेटिव नहीं नजर आ रहा। ठीक है। सो आई थिंक यस देयर इज अ हाई चांस दैट वी सरपास 49,000। So this can be either your 15 minutes trade or maybe your 1 week trade or option trade। मैं समझ सकता था उनकी मन की भावना थी कि मुझे ऑप्शन ट्रेड चाहिए, तो ये है आपके लिए ऑप्शन ट्रेड। बिल्कुल। नेक्स्ट सर, हमारे पास रोहित गुप्ता जी का है, पिडलाइट 3000 का कॉल ऑप्शन, अप्रैल मंथ का, होल्ड और सेल। सी पीटी लाइट ओवरऑल तो विशु पॉजिटिव। राइट, ओवरऑल मैं कहूंगा ये स्टॉक ने लाइफ हाई बनाया, ब्रेकआउट दिया मार्च महीने में, फिर रीटेस्ट करके फिर से ऊपर आया। सो ट्रेंड पॉजिटिव है आपका, पर शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत साइडवेज हो चुका है। हम्म। मेरे हिसाब से आपका 3,000 का कॉल है तो इसमें से आप आउट हो जाइए। आउट होने का कारण इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा मोमेंटम इसका वीक हो चुका है, साइडवेज हो चुका है ये स्टॉक। और इसमें मोमेंटम आपका फिर से बिल्डअप होगा अगर ये 3,060 के ऊपर जाता है। मैं आपको फ्यूचर्स लेवल्स बता रहा हूँ। अगर मुझे आपको स्पॉट लेवल बनाना है तो 3,055, उसके ऊपर जाए तो आप फिर से खरीदे, आपका शायद लॉस कवर भी हो जाए, आपको पैसे भी बने। अदरवाइज ये थोड़ा साइडवेज रह सकता है, जिसके कारण आपका कॉल ऑप्शन का भाव डीके हो सकता है, प्रीमियम डीके हो सकता है। और ऑप्शंस में ऐसा होता है ना कि 2-4 दिनों में रिजल्ट आना चाहिए, नहीं आता है 2-4 दिनों में रिजल्ट आउट हो जाएगी। तो बैंक निफ्टी भी जो मैंने सजेस्ट किया है वो 2-4 दिनों में आना चाहिए। मैंने आपको शुक्रवार सोमवार की बात करी, तो कल दिन ट्रेडिंग है, गुरुवार को छुट्टी है, शुक्रवार और सोमवार, तो बुध शुक्र सोम, ये 2-3 दिनों में रिजल्ट आया नीचे के ऊपर का तो ठीक है, नहीं आया तो एग्जिट।
ऑलराइट, ग्रेट सर। नेक्स्ट वी हैव स्वागत जी, जानना चाहते हैं वोडा आइडिया। अच्छा, सी आइडिया ओवरऑल डाउन ट्रेंड नहीं है। अभी भी आइडिया में ऐसा कोई पॉजिटिव फिगर नहीं है, ना टेक्निकली ना डेरिवेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको ये डेटा बहुत ही क्लियरली अगर बताऊं, आइडिया में बीच में अच्छा लॉन्ग बना था, मैं कहूंगा मार्च में, बट वो सारा गिव अप हो गया। मतलब एक ही झटके में शॉर्ट्स बिल्डअप ओवर, अभी भी शॉर्ट्स ही है, शॉर्ट्स ही है। सो आई वुड अवॉइड, आई मीन अब वीजा भी भारतीय अगर कंपेयर करेंगे तो आइडिया हैज बीन रियली अंडर परफॉर्म। राइट। नेक्स्ट सर हमारे पास है अदानी एंटरप्राइजेस। पॉजिटिव है, टेक्निकली पॉजिटिव है, टेक्निकली पॉजिटिव है। कब तक है वो भी बता दूं, जब तक 3100 के लेवल्स को होल्ड कर रहा है, विच इज 100 पॉइंट्स डाउन, विच इज 3% परसेंट वाइज देखोगे तो वो लेवल जब तक नहीं ब्रेक होते 3100 के, तब तक मोमेंटम पॉजिटिव है इसका। देखिए अब जहां तक डेरिवेटिव्स डेटा की बात करूं, इसमें शॉर्ट कवरिंग ही देखने मिली थी। मार्च महीने में इसमें शॉर्ट्स अच्छे खासे बिल्डअप हुए, उसके बाद जो भी रैली आई ना, शॉर्ट कवरिंग के कारण आई है, कुछ खास लॉन्ग बना नहीं है। तो डेरिवेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू में कहूंगा कि इसमें कुछ खास लॉन्ग्स नहीं है, स्ट्रेंथ या मोमेंटम नहीं है। इट इज जस्ट दैट टेक्निकली 3100 का लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो अगर होल्ड आउट करता है तो आपको इसमें एक तेजी देखने मिल सकती राइट सर। नेक्स्ट सर विप्रो। है। विप्रो, या विप्रो में कल एक कॉर्पोरेट एक्शन हुआ। कॉर्पोरेट एक्शन नॉट इन टर्म्स ऑफ प्राइस, आई मीन इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि विप्रो के जो प्रीवियस सीईओ थे, उन्होंने एग्जिट करा एक साल पहले ही, उनके जो टर्म था उसके पहले। और विप्रो ने, जहां तक मुझे पता है, आई मे बी रॉन्ग, आई डोंट नो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग ऑडियंस, बट देन उन्होंने इंटरनली एक सीईओ को अपॉइंट किया है हु हैज बीन एसोसिएटेड विद विप्रो सिंस लॉन्ग, hence the handover would be easy. Okay, I think Wipro's management is taking interest again into the stock or maybe into the company, so which is also positive. See, Wipro has been an underperformer, but then overall medium to long term trend जो इसका है वो पॉजिटिव है। विप्रो का मेरा तो आउटलुक, हमारा इनफैक्ट टेक्निकल आउटलुक भी आईटी पे बुलिश ही है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म। So that way it is positive, but looking from the derivatives angle now, so इसमें बहुत शॉर्ट बिल्डअप हुआ है रिसेंटली, एंड कहीं पे भी वो शॉर्ट कवरिंग के संकेत नहीं है। सो इन द नियर टर्म विप्रो इज नॉट लुकिंग पॉजिटिव, लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इट इज पॉजिटिव। Or if someone is looking from the derivatives angle for a very short term options point of view, I don't think it's राइट। good to go long out here. Probably result आ जाए, देखे क्या होता है। I hope negative surprise ना आए। राइट सर। सर प्रवीण जी ने पूछा है सन फार्मा 1620 सी, 31 रुपए का लिया हुआ है उन्होंने। Pharma has been good सेक्टर, ओवरऑल अच्छा परफॉर्म किया है, बट यहाँ तक मैं सन फार्मा की शॉर्ट टर्म की बात करूंगा तो यहाँ पे क्लियर क्लियर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ, क्लियर लॉन्ग अनवाइंडिंग है। सो जब डेटा इसके डेरिवेटिव्स के सजेस्ट नहीं कर रहा साइड, तो हमें अवॉइड करना चाहिए अभी लॉन्ग साइड पर। अगर आपकी कोई पोजीशन है तो मेरी तो राय रहेगी क्या, जब तक ये 1625-30 के लेवल्स नहीं निकालता ऊपर में, आप अवॉइड करिए। ये इसे लॉन्ग साइड रहना, आपको फिर भी रहना है तो आप 1600 का पुट बाय करके आप एज कर दीजिए। हाँ। ये मेरा बहुत ही क्लियर, बिकॉज इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने मिली है, टेक्निकली इसमें एक डाइवर्जेंस भी है विषय इसके या मोमेंटम में डेली में। तो डेली मोमेंटम इज डाइवर्जेंस एंड डेरिवेटिव डेटा इज शोइंग लॉन्ग अनवाइंडिंग, राइट। सो वो मोमेंटम नहीं है, लॉस ऑफ मोमेंटम। हम्म। ठीक है। नेक्स्ट जतिंदर जी ने पूछा था म्यूचुअल फंड्स फॉर नेक्स्ट 7 to 10 years होराइजन। सर ये थोड़ा एफएनओ का स्पेस ज़्यादा है, डेरिवेटिव्स का ज़्यादा है, बट वी डू हैव म्यूचुअल फंड स्पेसेस एंड सेशंस एज वेल। कल हमारा म्यूचुअल फंड मंडेज करके ट्विटर पे स्पेस होता है जहाँ पे वी ब्रिंग म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स एज वेल, तो यू कैन लिसन टू लास्ट नाइट्स रिकॉर्डिंग इटसेल्फ, उसमें जो भी डिस्कशन हुआ, एंड वील ट्राई टू गेट दिस क्वेश्चन आंसर्ड जब भी हमारे कोई म्यूचुअल फंड्स के रिसर्च से होंगे। नेक्स्ट वी हैव सर श्वेता जी का एल&टी इन्फो।
सी LTI माइंट्री में तो जबरदस्त शॉट्स है। इन विशु अगर मैं देखूं इससे तो ये लास्ट में फेब्रुवरी सीरीज से अगर देखता हूँ तो इसमें शॉट्स ही बिल्डअप हुआ है। आई मीन उसके भी लुक बैक पीरियड में अगर बढ़ा दूं तो भी मैं कहूंगा कि इसमें कंटिन्यूसली विशु शॉट्स बिल्डअप है। एटलीस्ट सिंस फेब्रुवरी तो शॉट्स है ही। ज्यादा बने हैं फेब्रुवरी से शॉट्स। पहले तो थोड़ा बहुत हमें अनवाइंडिंग आते हुए देखने मिला लॉन्ग साइड पर, बट अभी भी शॉर्ट कवरिंग के कोई संकेत नहीं है विशु यहाँ पे। एक्सट्रीम शॉट्स है, बट टेक्निकली एक सपोर्ट जो इसका है वो बनता है 47 50 70 के आसपास, और भी 100 रुपए नीचे। वहां पे अगर अटके और थोड़े भी अगर आपको शॉर्ट कवरिंग के संकेत दिखे तो प्रोबब्ली ये बाउंस करे। बट अदरवाइज LNT इन्फोटेक कंपेयर टू LNT टेक एक अंडर परफॉर्मर है। LNT टेक में अच्छी हमें लॉन्ग साइकिल देखने मिली, बट LNT इन्फोटेक में तो शॉर्ट्स ही है भर भर के। तो अभी भी कोई संकेत नहीं है कवरिंग है। सो माय आउटलुक देयर इज अ IT स्पेस में से विप्रो बेटर है, TCS बेटर है, दीज आर दी स्टॉक्स व्हिच आर लुकिंग पॉजिटिव ऑन द Yeah, FNO साइड। आई मीन ये लॉन्ग टर्म के लिए, विप्रो शॉर्ट टर्म के लिए, बट LNT इन्फोटेक में तो मेरे को मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी कोई ऐसा संकेत नहीं नजर आ रहा है। सो आई वुड से अवॉइड ऑन द लॉन्ग साइड। right, right. नेक्स्ट अप वी हैव सर सुरेंद्र रेड्डी जी ने M&M फाइनेंस के बारे में पूछा है। M&M फाइनेंस काफी साइडवेज रहा। आई मीन अगर आप देखें तो लास्ट ईयर मिड से इसमें एक सेल ऑफ आया जो का फिर बाउंस होकर साइडवेज हो चुका है। अभी रिसेंटली M&M फाइनेंस में विशु टेक्निकली एक अच्छा बाउंस आया, एंड अभी तो कुछ दिनों से लॉन्ग बिल्डअप भी देखने मिला, तो ये एक अच्छा ट्रेंड में आ चुका है ये स्टॉक। मेरे हिसाब से तो एक और शायद आपको यहाँ पे 310-15 तक देखने मिल सकती है। राइट सर। नेक्स्ट अप वी हैव सर केशर जी ने नेक्स्ट वीक के लिए कोई कॉल पूछा था, तो वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। प्रफुल्ल जी ने बोला ऑलवेज गुड टू हियर जय ठक्कर। थैंक यू सो मच सर फॉर द कॉम्प्लीमेंट, हम लोग और भी लाते रहेंगे जय सर को। आशीष पटेल जी का क्वेश्चन हो गया। राजीव कुमार जी ने सिल्वर एंड गोल्ड कहाँ जाकर रेस्ट करेगा पूछा है सर। देखिए, जहां तक गोल्ड का सवाल है, ये यहाँ वी आर बैक। तो सर नेक्स्ट अप हमारे पास क्वेरीज थोड़ी सी मैं वो करता हूँ जो बार बार दिख रही हैं। DLF TCS एंड इन्फी पे काफी सारी क्वेरीज हैं सर। ऑफ कोर्स IT पे तो मुझे मतलब डाउट ही नहीं है, इशू रहनी है बिकॉज रिजल्ट आने हैं अभी। ठीक है, TCS का जहां तक सवाल है विशु, मैं कहूंगा ये ये टाइम का जो इन लोगों का रिजल्ट है ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। आई मीन रिजल्ट्स के पहले हमें एक फॉल आते हुए देखने मिला मार्च में, और एक बाउंस बैक भी आ गया, बट ये जो बाउंस बैक है वो एक करेक्टिव वाला है। सो TCS में मेरी खरीदारी की सलाह होगी अगर वो 44,000 4100 के ऊपर जाता है तो, अदरवाइज नहीं। मगर साइडवेज रख सकते हैं, मेरी बेचने की सलाह नहीं है। राइट, राइट। जहां तक इन्फी का सवाल है, इन्फी में एक अच्छा बाउंस आज देखने मिला विशु, बट शॉर्ट टर्म में मैं ये भी कहूंगा कि इसमें जो शॉर्ट्स बने हैं मार्च में, जबरदस्त शॉर्ट्स बने, मतलब पूरे IT सेक्टर में फरवरी मार्च में शॉर्ट्स बहुत बन गए। तो पहले आपको अनवाइंडिंग देखने मिली, फिर शॉर्ट्स देखने मिला। तो शॉर्ट कवरिंग अगर आ जाए, उस लिहाज से अगर रिजल्ट में कुछ पॉजिटिव आ जाएगा तो आपको शॉर्ट कवरिंग जरूर देखने मिलेगी विशु। बट क्लियर एक अप ट्रेंड हो जाए वैसा भी नहीं है। तो यहाँ पे आप इधर साइड एक बड़ा मूव आ सकता है। तो आप आपको अगर मैं थोड़ा इसमें डीपली बात भी करते हैं विशु, बिकॉज रिजल्ट आने वाला है तो लोगों को इंसाइट्स थोड़ी अच्छी मिल जाए, वो हम देखते हैं। तो या अगर मैं इन्फोसिस का आपको अगर डेटा बताऊं तो 96 का IVP पे चल रहा है अभी, 34 की IV चल रही है इसकी विशु। ठीक है, 40 की तो इसकी हाईएस्ट IV रही है पिछले 250 पिछले एक साल में, और अभी ये 34 के IV पे तो चल रहा है ऑलरेडी। तो आप मान सकते हैं कि 34-35 का IV पे तो हायर साइड पे चल रहा है। IBR IVP की डेटा 96 के आसपास का सजेस्ट कर रहा है, या right? तो और शॉर्ट्स बने हुए हैं, लॉन्ग नहीं है। तो आपका हम्म बहुत ही अच्छा डेटा रिजल्ट आ गया, बहुत ही अच्छा। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ रिजल्ट के पहले व्यूअर्स को थोड़ा फायदा हो जाए कि आपका बहुत ही अच्छा समझो
रिजल्ट आ गया तो इसमें शॉर्ट कवरिंग आए, फिर देखना होगा कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है नहीं हो रहा है, बिकॉज इतना शॉर्ट जो आया है तो कवर तो होगा। अब बाद में शॉर्ट कवरिंग का अगर लॉन्ग बिल्डअप नहीं हुआ तो स्टॉक थक जाएगा, और ऊपर में अटक जाएगा, फिर स्लोली स्लोली गिरेगा। अब शॉर्ट कवरिंग कहाँ तक आ सकते हैं इसमें, 1575 1600 तक का शॉर्ट कवरिंग आपको मिल जाए, 200 रुपया 100 रुपया ऊपर, राइट। और 100 रुपये इन्फोसिस के लिए कुछ नहीं है, आपको ही पता है, मतलब 100 डिवाइड बाय 1500 इज व्हाट, अराउंड 6%, ठीक है। अब शॉर्ट्स तो इतने ऑलरेडी बन चुके हैं, तो समझो मान लो खराब रिजल्ट आ गया तो क्या ज्यादा गिरेगा, या ऑलरेडी काफी गिरा है। मतलब ये स्टॉक 1700 वाला आज नीचे में ऑलरेडी हमें 1500 साढ़े साढ़े 1400 के जितने बोले तो 1750 से 1720 से लेकर आप मान लो 1470, मतलब ऊपर से 250 रुपए तो गिरा है, ऑलरेडी विश हुई है। तो हमें 14-15% का फॉल ऑलरेडी देखने का है, तो वही 5-6% गिर सकता है। तो आपका हुआ क्या विश हुई है, 12% की रेंज हो गई है मुझे ऐसा लगता है। तो ये आप जो इतनी आईवीज बड़ी है उसमें अगर आप ये एक साइडवेज स्ट्रेटेजी अगर बनाते हैं, बराबर है, जिसको हम कहेंगे शॉर्ट एंड कंडोर, ठीक है ना, तो उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है। मतलब मेरा ये मानना है कि आप आउट ऑफ द मनी के कॉल पुट बेच दीजिए अगर, तो आउट ऑफ द मनी के कॉल पुट अगर मैं बेच दूं 1500 के और समझो 1400 इशू इसके, तो वो क्या रेट चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। 1600 के, सॉरी 1600 का चल रहा है 12 रुपया, और पुट आपका 1400 का ट्रेड कर रहा है लगभग 10 रुपया, 22 रुपए के आसपास का ट्रेड कर रहा है। ये दोनों अगर आप बेचते हैं तो आपको 24 रुपए के आसपास मिलता है, 24-25 रुपए के आसपास, और ऐसे भी आपका 1600 क्या बात तो आपका हो, मगर इसको आपको हेज भी करना है, बिकॉज आप एक्सपायरी के रिजल्ट के पहले आप इसको नेकेड लॉन्ग तो शॉर्ट नहीं जा सकते। सो ऊपर में इसका आपको 1660 का आपको एक कॉल खरीद लेना है जो 5 रुपए मिलेगा, और नीचे आपको 1360 का एक पुट ऑप्शन खरीद लेने का 3 रुपए में, 5 रुपए में 5-5 रुपए का खरीद लो। तो ये आप कर सकते हैं, या तो सिंस ये आइदर साइड मूव आ सकता है, तो आप कॉल पुट लेके भी जा सकते हैं। कॉल पुट लेके जाने में डर एक ही लग रहा है मुझे कि आईवी इतनी बड़ी हुई और आपकी आईवी के ऊपर है, तो समझो नॉन इवेंट हुआ ना तो ये क्रैश हो गया आईवी। आप बटरफ्लाई भी कर सकते हैं अगर आपको करना रहेगा, तो इसमें आप 1500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1500 कॉल आपका 45 ट्रेड कर रहा है विशु, और वही 1500 का पुट आपका अगर हम देखें इन्फोसिस का, तो ये भी करीब करीब चलना चाहिए 40-45 के आसपास, तो आपको 100 रुपए के आसपास का तो मिल रहा है। फिर आप आउट ऑफ द मनी खरीद कर आए हेज कर दीजिए। सो यू कैन डू दिस शॉर्ट टाइम बटरफ्लाई इफ यू वांट टू डू इट। मेरा व्यू तो ओवरऑल मैं कहूंगा साइडवेज रहेगा या तो नेगेटिव रहेगा। शॉर्ट कवरिंग काफी देखने मिल सकती है आपको, बिकॉज शॉर्ट्स बिल्डअप हुए हैं यहाँ पे। अब दूसरा जो सवाल था टीसीएस पर, तो टीसीएस पर भी मैंने वही व्यू दिया। इस पे मैं आपको विशु टीसीएस का हम यही चार्ट देख लेते, यही डेटा देख लेते जो हमें इन्फोसिस में देखने मिला, देखा हमने। तो टीसीएस का आईवीपी 99 ट्रेड कर रहा है, 100 से ऊपर तो जाएगा नहीं है। आईवीआर 100 पे, और आईवी उसकी 28 के आसपास ट्रेड कर रही है, ऑल टाइम हाईस पे, लास्ट एक साल के हाईस पे ट्रेड कर रहा है। तो टीसीएस पर भी अगर आप यदि शॉर्ट हैंड बटरफ्लाई बना के जाते हैं, 39-40 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है इशू, आप ध्यान में रखना ये सब। 100 रुपए के करीब करीब का टोटल हमने बेचा है इन्फोसिस में, और ये 39-40 के आसपास ट्रेड कर रहा है टीसीएस इशू। तो टीसीएस का हम कॉल पुट देख लेते हैं। सो 39-50 का ही देख लेते हैं, 39-60 का। तो 97-98 चल रहा है आपका 39-40 का कॉल, और पुट ऑप्शन जो है 39-40 का लगभग ट्रेड कर रहा है। ये भी करीब करीब समझो ना 95 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 95 के आसपास, तो दोनों मिलाकर टोटल इसका आपका हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 190। मतलब आप 200 रुपये ऊपर सेफ है, 200 रुपये नीचे 4150 तक, और नीचे में 3750 तक, ठीक है। सो 400 रुपए की रेंज होगी आपकी 39-40 के ऊपर,
हम्म, 10% की रेंज तो आपने बना दी है, yeah, बराबर है, दोनों कॉल पुट बेच दिए तो। और आगे के कॉल पुट आप खरीद भी लीजिए इसके। हम्म, हम्म, तो 200 रुपये ऊपर का आप खरीदते हैं तो आपको मान लो 4150 का कॉल खरीदना होगा इस पे है, हम्म, जो 28 रुपये में मिल रहा है, 4150 का कॉल। और नीचे में 3750 का पुट खरीदते हैं, थर्टी हम्म, सेवन 50 का। तो दोनों अट्ठाईस 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 रुपये मिल रहे हैं, 28 इंटू 2 मतलब आपको 56 रुपये गए। तो 190 में से आपके 56 जा रहे तो भी आपको 134 रुपये के आसपास का क्रेडिट है। हम्म, अब देखते क्या होता है। ठीक है। right, सो मुझे ऐसा लग रहा है शॉर्ट एंड बटरफ्लाई वापस, मतलब इतने हाई आईवीज पे मैं खरीद नहीं सकता। हम्म, लास्ट एक साल की आईवीज अगर देखिए उस बाद में कुछ हो गया 10% ऊपर नीचे तो ठीक है, मैं हेजी हूँ। बिल्कुल, ये आप देखते हैं हम दोनों का हुआ क्या। रिजल्ट के राइट, बाद शायद हम एक बार, मैं आपको बता दूंगा, आपको जिधर पोस्ट करना है करना, नहीं तो नेक्स्ट यूट्यूब लाइव में ले लेंगे इसको कि हमने ये किया था। गलत जा सकते हैं बॉस, गलत जाने में कुछ नहीं है, पर ये बताना ये जा रहा हूँ कि इतनी हाई आईवीज और राइट, आप रिजल्ट के टाइम पे कॉलपुर खरीद लेंगे, और अगर नॉन इवेंट रहा हम्म, तो ये जोर से क्रैश होगा आईवीज, राइट, तो फिर प्रीमियम घट जाएंगे, तो फायदा नहीं। आप सही जाकर भी शायद आपको पैसे ना। राइट, राइट। ऑसम। नेक्स्ट अप सर, एक घोषाल जी का क्वेश्चन है, हाउ टू सिलेक्ट डीप ओटीएम फॉर सेलिंग। हाउ टू सिलेक्ट डीप ओटीएम फॉर सेलिंग? see, selling deep OTM is as good as selling futures, करेक्ट। अब सेलिंग फ्यूचर्स इसलिए मैं बता रहा हूँ बिकॉज उसका डेल्टा जो है ओटीएम का डीप, ठीक है ना, इज एज गुड एज वन, बराबर है, क्लोजर टू वन। तो डीप ओटीएम, सॉरी डीप ओटीएम बेच रहे हो, आईटीएम नहीं, सॉरी नॉट इन द डीप मनी। ओटीएम अगर आपको बेचना है, सॉरी सॉरी, डीप ओटीएम बेचना है आपको, तो हाउ टू सिलेक्ट दैट इज वेरी सिंपल। आई मीन यू हैव टू सिलेक्ट अ रेंज। अगर समझो आपका कोई एक स्टॉक है, पार्डन मी, मैं डीप आईटीएम समझ रहा था, पर डीप ओटीएम। अब ओटीएम तो बहुत सिंपल सी चीज है, ये आपका सवाल में थोड़ा समझा के कॉम्प्लिकेटेड सवाल होगा, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आपकी निफ्टी अगर मान लीजिए अभी जो ट्रेड कर रही है 22,700 पे, आपको लगता है कि कल की एक्सपायरी 23,000 के ऊपर, 22,900, मैंने कहा कि 923 के ऊपर लगती नहीं है, नीचे में आपको 22,500 के नीचे लगती नहीं है, 200 रुपये नीचे, 200 रुपये ऊपर, 400 रुपये हो गया, अभी आउट ऑफ द मनी रेंज बेच दीजिए। सिंपल हो गया ना। कल वीकली एक्सपायरी अगर है तो डीपी हो गया ना, कोई 4 स्ट्राइक ऊपर और 4 स्ट्राइक नीचे, इससे ज्यादा डीप में आपको प्रीमियम ही नहीं मिलेगा। तो राइट, आपने एक रेंज मिल गई, आप रेंज को बेच दी, सिंपल, अगर आप मिडल ऑफ द रेंज पे हैं तो। राइट, ऑसम। ठीक है। बटरफ्लाई मॉडल और पैटर्न, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू आइडेंटिफाई एंड गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। शॉर्ट बटरफ्लाई आप कब करते हैं? जब आपको लगता है कि रेंज बाउंड रहेगा, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जब मैंने आज जो सजेस्ट किया टीसीएस के ऊपर, हम्म, शॉर्ट बटरफ्लाई, वो इसलिए सजेस्ट किया बिकॉज आईवीज इतनी ऊपर है और स्टॉक में कुछ ज्यादा अप या डाउन मूवमेंट नहीं लगता। आईवीज इतनी ऊपर है तो आप क्या करते हैं कि आपको लगता है कि आईवीज गिरेगी, हम्म, तो आप ऑप्शंस बेचते हैं, बिकॉज आईवीज जब गिरती है ना तो ऑप्शन प्रीमियम गिरते हैं, ठीक है। या, बट एट द सेम टाइम आपको इवेंट रिस्क है, इवेंट रिस्क क्योंकि रिजल्ट है। तो आपने क्या किया, जो आपने एट द मनी स्ट्रैडल बेचा है उसका जितना भी प्रीमियम पॉकेट किया है उसका एग्जैक्ट बाहर, मतलब 3940 पे 200 रुपया मिल रहा है, तो 3940 पे 200 करूँ तो मेरा 4140 होता है। सो 4140 4150 के आसपास का कॉल ले लो, और नीचे में 3760 3750 के आसपास का पुट ले लो, तो आप क्या हो जाएगा, उसके बाहर अगर जाता है तो हमने कॉल पुट खरीदा हुआ है, यहाँ पे एटलीस्ट आपको पैसा मिल जाएगा। हाउ टू गेट इट? सो हम्म, आप ये दो सिनारियोज में आप शॉर्ट एंड बटरफ्लाई कर सकते हो, व्हेन यू थिंक दैट or the premiums are high, if you think that market is going to be range bound, or the या, highs are high. So, दोनों में हम्म, से एक में आप कर सकते हो। कल टीसीएस में 4% का मूव आ भी सकता है, पर 4% का मूव भी आया ना कल, फिर भी इसमें आपको मुनाफा होगा। आपने दस हम्म, परसेंट की रेंज मिल गई आपको एट द मनी बेचकर, हम्म, तो 2-3% भी चल गया ना तो इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 10% कल मूव आता है ना टीसीएस में अप या डाउन, तो आपको इसमें आईवीज और शूट होते हुए मतलब मेंटेन होते हुए देखने मिल सकती है, प्रीमियम बढ़ते हुए देखने मिल सकते हैं, अदरवाइज घुस जाएगा।
ठीक है, आई थिंक विद दैट सर हमारा टाइम इज कमिंग टू अ क्लोज। क्वेरीज तो बहुत 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 सारी और भी हैं, लेकिन वील बी बैक विद मोर ऑफ योर टाइम, होपफुली आप अलाउ करेंगे तो। एंड बिल्कुल। बिफोर वी लीव सर, इफ वी कुड हैव वन फाइनल कंक्लूडिंग एडवाइस फ्रॉम यू। श्योर। सी बेसिकली ऑप्शंस जब आप ट्रेड करते हो, बिकॉज दिस हैज बीन अ मोर ऑफ योर, मेरे साथ तो आप लोग ज्यादा डेरिवेटिव्स की बात करेंगे हम, एंड जो भी सेशंस होंगे मेरे, तो ऑप्शंस के बारे में एक मैं कहना चाहूंगा कि व्हेन यू आर ट्रेडिंग ऑप्शंस यू हैव टू लुक all the other different parameters, derivative parameters as well, and just not look at the technical chart. काफी लोग खाली टेक्निकल चार्ट देख के जो डेरिवेटिव्स ट्रेड करते हैं, राइट, फॉर देम फ्यूचर्स इज फाइन बट नॉट ऑप्शंस। ओके, सो फॉर ऑप्शंस यू हैव टू लुक एट द डेरिवेटिव्स के ऑप्शंस के डेटा वगैरह सब भी। जैसे मैं अभी आईवीज की बात कर रहा था रिजल्ट के टाइम पे, तो क्या हो सकता है किसी का व्यू भी होना कि टीसीएस यार यहाँ से 2% अप हो सकता है, तो मैं कॉल ऑप्शन ले लेता हूँ। तो बस आप देख लो रिजल्ट है, आईवीज अगर बढ़ी हुई है 2% अब भी गया, तो शायद आपको इतना पैसा बनाना ना मिले रिस्क के साथ। अगर और अगर समझो 1% भी ऊपर गया ना, आधा परसेंट भी ऊपर गया, तो नॉर्मल डे अब आधा 1% में भी आपने कॉल खरीदा होता है ना, तो आपको पैसा बनता है, क्योंकि राइट। कुछ तो डेल्टा का फायदा होता है आपको। मगर इसमें आईवीज इतनी बड़ी हुई है कि वो आपका डेल्टा मूव को नेगेट कर देगा। और राइट। आपको अब कभी कभी होता है ना किसी को इशू कि भाई मैं तो आधा टका ऊपर है फिर भी मेरा कॉल क्यों नीचे, वो इसीलिए या नीचे होता है। तो ये कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंटली, आप वो रीड करेंगे तो वो आपको अच्छा बेनिफिट होगा। सो ट्रेडिंग ऑप्शंस में आप और थोड़ा चीज ऐड कर दीजिए along with just technicals. That is it. thank you so much again sir for taking out Thank time you. for us. We'll be back with more sessions like this. Thank you Sure. everyone. Thanks. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from ICICI Direct.